Praise the Lord. It indeed is a blessing to be in the midst of God's people. और परमेश्वर के लोगों के बीच में होना ये बहुत ही आशीष की बात है। आप सभी को यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करना चाहता हूँ। Thank you, Brother Tony, for that introduction. और टोनी भाई को धन्यवाद जो परिचय आपने दिया है। I know you are missing your pastor, Pastor Stanley, and his dear wife Priya, और and their two children. और मुझे पता है आप पास्टर स्टैनली को आप मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और उनके साथ प्रिया और उनके बच्चे को भी आप याद कर रहे होंगे। You all may be longing to see the little one too. और जो नया बच्चा आया है उसको देखने के लिए आप आतुर होंगे। Praise God for all the ways in which He has led us thus far. और मैं खुश हूँ कि इस तरह परमेश्वर ने यहाँ तक हमें अगुवाई किया है। Life is uncertain, isn't it? और जीवन है अनिश्चित है कि नहीं? The last week news must have broke our hearts when we heard about the many stories of those passengers in that flight. और पिछले हफ्ता जो समाचार हमने सुना उसके कारण हमारे हृदय टूटा है, क्योंकि बहुत सारे जो यात्री थे वहाँ पर उस तरह वो गुजरना पड़ा। They all had plans, they all had dreams, they all had many things going on in their minds. They were excited about that travel, but all ended in a few minutes. और उनके पास सपने होंगे, उनके पास योजनाएं होंगे, और लेकिन बाकी सारे चीज़ें कुछ क्षण में ख़त्म हो गया। Not only that incident, but many other incidents also surprise us, shock us. और सिर्फ ये घटना नहीं, बहुत सारे घटनाएं हैं जिन्होंने हमें झकझोर के रख दिया है। I am from Gujarat. और मैं गुजरात से हूँ। And Gujarat has faced a lot of natural calamities. और गुजरात में बहुत सारी प्राकृतिक जो आपदाएं हैं वहाँ पर हुई है। Some of the calamities that we faced, one was a big flood in 1998 June 9. और कुछ आपदाएं में से एक जो बाढ़ का 1998 में जो बाढ़ का आपदा आया था, almost 20,000 people were washed away. और कम से कम 20,000 लोग को उसने क्षति पहुंचाया। Water came up like the height of 12 feet. The water came and took away people, vehicles, और many houses were destroyed. और जो बाढ़ का पानी था 12 फीट की ऊंचाई से आ रहा था, और सारे लोगों को, गाड़ियों को, संपत्तियों को उसने लेके चला साथ में। In the year 2000 we faced a big earthquake. और 2000 में बड़ा सा एक भूचाल भी हमने सामना किया। That was 7.9 in Richter scale, and Bhuj, the place where I am from, was the epicenter. और जो भूचाल का जो एक डिग्री था 7.9 रिक्टर स्केल था, और उस समय में Bhuj was the epicenter. भुज जगह से मैं आता हूँ, वहाँ पर था। 100,000 people, 1 lakh people died in that earthquake. और उस भूचाल में 1 लाख लोग मर गए थे। My grandmother, she also died in that earthquake. और जो मेरी अम्मी थी, नानी थी, वो भी उसी भूचाल के दौरान वो चल बसी। So we have all seen so much of these tragedies happening around us. और हमारे आसपास इस तरह से कई सारी आपदाएं हैं, समस्याएं हैं, वो होती रहती है। Well, praise God that we are alive. लेकिन परमेश्वर की महिमा हो कि हम जीवित हैं। There's a reason for us to worship the Lord. और परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक कारण है। Even if we did not get any good blessing or any good blessing in the sense that when we compare with others and say this is good, this is bad, we did not get this, we did not get that. Even if we did not get all those things, we still have life. और हम तुलना करते हैं कि उनको ये मिला है, उनको ये मिला है, हालांकि हमें कुछ आशीष ना मिला होगा, फिर भी हमारे पास जीवन है। God has blessed us. परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है। Many a times when we compare ourselves with others, we think we are not blessed yet. और कई बार हम अपने आप को दूसरों से तुलना करते हैं और बोलते हैं कि हमें तो आशीष ही नहीं मिला है। Look at the breath that we are taking. We are blessed because we are alive. और देखिए हम जो सांस को लेते हैं इस कारण हम जिंदा है। So in this life, what should we do? और इस जीवन में हमें क्या करना चाहिए? As believers, as Christians, as members of the body of Christ, what is our responsibility? एक विश्वासी होने के नाते, एक यीशु मसीह की शरीर की देह की हिस्सा होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? I am assuming that most of us were born Christians. और मैं सोच रहा हूँ कि हम सारे लोग मसीह लोग हैं और उस परिवार में we were born into Christian families. शायद हम एक मसीह परिवार में जन्म लिए हैं। Maybe a few of you accepted later.
और शायद हो Jesus सकता later. है कई लोगों ने बाद में यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया Of हो। course, you all must have had a spiritual encounter and you must have accepted Jesus as your personal savior at some point of your life. और हो सकता है आपने अपने जीवन की किसी समय में मसीह परमेश्वर के साथ एक आध्यात्मिक मुठभेड़ हुई हो और यीशु मसीह को आपने करीब से जाना हो। But in this temporal life, what is our responsibility? और ये जो अस्थाई जीवन है हमारी जहाँ पर हमारी जो जिम्मेवारी क्या हो सकता है, What does God expect from us? और परमेश्वर हमारे से किस चीज को अपेक्षा रखता है। There are some things that we say, God expects our worship, God expects our praise, God accepts serving Him. Yes, that's all true. और हम कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारे से आराधना की, महिमा और प्रशंसा की अपेक्षा रखता है। हाँ, ये सत्य है। May the Lord help us. और परमेश्वर हमें सहायता करे। But is there some specific plan for each one of us in God's hand? क्या परमेश्वर के हाथ में हम में से हर एक के लिए कोई खास योजनाएं हैं? Were we an accident? Was our birth an accident? क्या हमारी जो जन्म है कोई एक घटना है? I don't think so. मुझे तो नहीं लगता है। God has a purpose for each one of us. परमेश्वर के साथ हम हर एक के लिए एक योजना है। It can be unique in nature. ये एक स्वभाव में बहुत ही अनोखा होगा। अनोखा लग सकता है। But it can be, it's all for the extension of God's kingdom. ये हो सकता है परमेश्वर की राज्य की विस्तार के लिए हो सकता So है। I want to take you to the book of Genesis. और मैं चाहता हूँ आप इस समय उत्पत्ति की पुस्तक खोलें And for a short time we will study from the life of Joseph. और कुछ समय के लिए हम यूसुफ के जीवन से इसको देखेंगे। Genesis chapter 49 उत्पत्ति 49 अध्याय and verse 22. उसके 22 वचन। Genesis 49:22. उत्पत्ति 49 उसके 22वां वचन। I'll read it. Joseph is a fruitful vine near a spring whose branches climb over a wall. यूसुफ बलवंत लता की एक शाखा है, वो सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है, उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती है। Verse 23 and 24. With bitterness archers attacked him. They shot at him with hostility, but his bow remained steady. His strong arm stayed limber because of the hand of the mighty one of Jacob, because of the shepherd, the rock of Israel. 23 और 24 वचन। धनुधरियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं, पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी वहाँ और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान ईश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास वो चरवाहा आएगा जो इस्राएल का पत्थर भी ठहरेगा। These verses which we read are those verses or those statements which Jacob said. और ये जो वचन हमने पढ़ा है ये याकूब के द्वारा दिए गए एक बयान है। Jacob was blessing his sons. और याकूब अपने बेटों को आशीष दे रहा है। In the Old Testament we see this happening where fathers bless their children. और पुराने नियम में हम देख सकते हैं इस चीज को कि एक पिता अपने बच्चों को आशीष देता है। Fathers bless their children and those blessings actually become prophetic words for those children. और पिताएं अपने बच्चों को इस प्रकार से आशीष देते हैं और उस आशीष एक भविष्यवाणी की तरह उनके लिए काम करता है। And Jacob is telling that Joseph is a fruitful vine near a spring whose branches climb over a wall. Verse 22. और याकूब कह रहा है यूसुफ एक फलवंत लता की एक शाखा है। A fruitful vine near a spring whose branches climb over a wall. वो सोते के पास लगी हुई फलन लता की एक शाखा है, उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती हैं। Now we are familiar. I hope we are familiar with the life of Joseph. और मुझे लगता है कि हम यूसुफ के जीवन से परिचित हैं। Who was Joseph? और यूसुफ कौन था? He was son of Jacob, of course. हाँ, ये याकूब का बेटा था। He was much loved by his father. और उसके पिता के द्वारा बहुत ही उसको प्रेम मिला था। But did his brothers like him? क्या उसके भाई उसको पसंद करते थे? Did Joseph's brothers like him? क्या यूसुफ के भाई यूसुफ को पसंद करते थे? No. नहीं। His parents loved him, but his brothers did not like him. और उसके माता पिता उसको प्रेम करते थे, लेकिन उसके भाइयों उनसे प्रेम नहीं रखते थे। And this young man of 17
और ये faced a big tragedy in his life. और ये जो 17 साल का व्यक्ति है अपने जीवन में इस प्रकार की नाखुश एक अवस्था से जाता है. What was that? और ये क्या हो सकता है? He was sold off as a slave to Egyptians. और मिस्री के पास उनको एक स्लेव दास के रूप में उसको बेच दिया गया. Yeah. Can you imagine our own brothers and sisters selling off us as slaves क्या to a community or to a country where people buy slaves and use them, misuse them? क्या हम सोच सकते हैं कि हमारे अपने भाई हमें एक दास के रूप में किसी दूसरे देश में बेच दे जहां पर वो दासों को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं? Do slaves get royal treatment? क्या दासों को एक राजकीय सम्मान मिलता है? No. नहीं. They were considered like a thing, a commodity. और उनको एक वस्तु की तरह उनको व्यवहार किया जाता They है. did not have any kind of freedom. उनके पास किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती है. So Joseph should have been the most bitter person. और यूसुफ बहुत ही एक कड़वी इंसान हो सकता है. He should have kept so much of bitterness in his mind, saying, "Why did this happen to me?" और इस यूसुफ ने अपने हृदय पर इस जो कड़वी बातें हैं इसको रखा होगा कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है. When some things that we do not expect happen to us, we tend to become bitter in life. और जब हमें लगता है कि जिस चीज की हम अपेक्षा करते हैं और वो चीज हमारे जीवन में नहीं होती है, हम उस कड़वापन को हम आगे ले चलते We हैं. grumble and murmur and complain and say all kinds of things. हम कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते हैं और इस प्रकार की काफी सारी चीजें हम करते हैं. We curse ourselves, we curse our parents, we put ourselves down, we even forget our identity and say all kinds of things that comes to our mind. और हम अपने आप को श्रापित देते हैं, करते हैं, अपने माता पिता को श्रापित करते हैं, अपने आप को नीचे और गिराते हैं और इस प्रकार से हमारी दिमाग चलता है. This is our tendency. This happens with us. ये हमारे साथ इस प्रकार से चीजें हो सकती है. Now let's look at the life of Joseph from chapter number 39. और आइए हम यूसुफ के जीवन में देखेंगे 39 अध्याय से 39. You can just say 39. Yeah. Chapter number 39. From 39, I'll just point out a few verses which you can highlight or you can note or you can just keep in your mind at how the Lord was taking Joseph through this journey, this difficult time. और आप इस चीज को आप अपने नोट में लिख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार परमेश्वर यूसुफ को उसकी जीवन की यात्रा की ओर ले चलता है. In chapter number 39, he is in the house of Potiphar. और यहाँ पर इस चैप्टर में परमेश्वर यूसुफ को एक पोतीफर के घर में ले चलता है. Potiphar is an Egyptian and he started trusting Joseph. और पोतीफर एक मिस्री व्यक्ति था और वो यूसुफ को लेकर उस पर भरोसा करने शुरू करता है. Verse number 2. और दूसरी वचन को आप देखें. The 39:2. The Lord was with Joseph and he prospered and he lived in the house of his Egyptian master. उत्पत्ति 39 उसके 2. और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वो भाग्यवान पुरुष हो गया. And verse number 3, when his master saw that the Lord was with him. और तीसरा वचन, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है. Did Potiphar know about this living God? क्या पोतीफर को पता था कि जीवित परमेश्वर के बारे में? Was Potiphar worshipping this living God? क्या पोतीफर इस जीवित परमेश्वर की आराधना करता था? I assume no. मुझे लगता है नहीं करता था. He never knew about this living God. उसको कभी भी इस जीवित परमेश्वर के बारे में पता नहीं थी. But through Joseph, Potiphar came to know about the Lord. लेकिन यूसुफ के द्वारा पोतीफर को परमेश्वर के बारे में पता चलता है. How is that possible? ये कैसे हो सकता है? Can our lives reflect Jesus? क्या हमारे जीवन यीशु मसीह को प्रतिबिंबित करता है? Maybe through speech or through preaching or through a sermon or through a message we can preach about Jesus. हो सकता है हमारे वचन के द्वारा, हमारे प्रचार के द्वारा, हमारे संदेश के द्वारा हम यीशु मसीह के बारे में बोल सकते हैं. But was Joseph preaching here? क्या यूसुफ यहाँ पर प्रचार कर रहा है? In fact, Joseph did not have a voice in that house. हालांकि उसके घर में उसके साथ उसकी आवाज नहीं थी. Because he is a slave.
क्योंकि वो तो एक दास है। But then the master can see the Lord in Joseph. लेकिन यहाँ पर जो मालिक है यूसुफ के जीवन में परमेश्वर को देख सकता है। Not only that, सिर्फ ये नहीं, the master saw that whatever Joseph would do, that work would be a successful work. That would end in success. और मालिक ने ये देखा कि यूसुफ जो भी काम करता है और वो बहुत ही सफल होता है और उसमें वो अच्छा कर सकता है। So people look at us. और इस कारण लोग हमें देखते हैं। When we say we are Christians, or when we say we are believers, or we go to church, or when they see a Bible in our hand, they see us. और जब हम कहते हैं कि हम मसीही लोग हैं और जब हम कहते हैं हम कलीसिया जाते हैं और हमारे हाथ में बाइबल है, वो इस प्रकार से देखते हैं। Well, your friends can even see you live right now. शायद आपके दोस्त अभी आपको लाइव देख रहे होंगे So they see that we are in the church और right वो now. देख रहे होंगे कि हम अभी कलीसिया में हैं। So when they see us, जब वो can they देखते see हैं Jesus in us? और जब वो हमें देखते हैं, हम में वो यीशु मसीह को देखते हैं। And when we read that story, जब हम इस कहानी को आगे पढ़ेंगे, verse number 4, 4वां वचन, Joseph found favor in the eyes and became his attendant. तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वो उसकी सेवा टहल करने So that लगा। means when we have Jesus in us, or when people see Jesus through us, we can earn the favor of people too. और इसका मतलब ये है कि अगर परमेश्वर की एक अनुग्रह हमारे ऊपर है, लोग हमारे और देखने शुरू करते हैं। Hallelujah. हालेलुया, आमीन। Joseph found favor. और यूसुफ को यहाँ पर अनुग्रह कृपा मिलता है। Why did he find favor? उसको इस प्रकार से कृपा क्यों मिली? And not only did he find favor, he is promoted और सिर्फ उसको कृपा नहीं मिली, उसको बढ़ोतरी भी मिली। from the slave to the attendant. और एक दास से Attendant. It's, एक दास से एक अटेंडेंट तक। maybe someone who does the housekeeping work. और हो सकता है जो घर में घरेलू काम करने वाला। Did someone recommend for Joseph? क्या कोई जोसेफ यूसुफ की तरह व्यक्ति कोई चाहता है? Did any of his what we say friends or relatives or parents recommend for Joseph? कोई दोस्त, व्यक्ति, परिवार इस प्रकार की यूसुफ की सिफारिश? Joseph is alone. Joseph is alone. यूसुफ अकेला है No one knows his story other than him. और उसके अलावा उसकी कहानी किसी को नहीं पता है। But who is promoting Joseph? लेकिन यहाँ पर यूसुफ आगे बढ़ा रहा है। The one who is with Joseph. और एक जो यूसुफ के साथ है। Who is with Joseph? कौन है यूसुफ के The साथ? one who created Joseph. जिसने यूसुफ को बनाया है। Who created Joseph? यूसुफ को किसने बनाया? The living God. जीवित परमेश्वर। The one whom we worship this morning. और एक परमेश्वर जिसको हमने आज की सुबह He is आराधना the किया। one who was promoting Joseph. और वो है जो यूसुफ को आगे बढ़ा रहा है। Blessings come step by step. और आशीष धीरे धीरे कर कर आती है। It comes at each step of obedience. और आज्ञाकारिता की हर एक कदम पर ये आशीष आती है। Blessings come with our commitment to the Lord. और आशीष परमेश्वर के तरफ जो हमारी समर्पणता है उस जगह से आती है। There is a Hindi word saying chappar फाड़ के। चप्पल फाड़ के आता है आपसे। कौन बनेगा करोड़पति? Who will be the millionaire? That does not happen here. और ये यहाँ पर वो नहीं हो रहा है। It can happen sometime, ये हो सकता है कई कबार, but it does not happen often. और लेकिन ये अक्सर नहीं हो सकता। God takes us through a process. और परमेश्वर हमें एक प्रक्रिया के द्वारा ले चलता है। We allow the Lord to work in our lives, और हम परमेश्वर को हमारे जीवन में अनुमति देते हैं। and slowly our Lord starts lifting us up. और धीरे धीरे परमेश्वर हमें ऊपर को उठाता है। Joseph never expected this to happen, और यूसुफ ने कभी भी अपेक्षा नहीं किया कि ये उसके साथ हो सकता but the है। Lord is raising him up. लेकिन परमेश्वर ने उसको ऊपर उठाया। But when the Lord is raising him up, the devil is planning something else. और जब ये परमेश्वर उसको ऊपर उठा रहा था, और जो शैतान है उसके खिलाफ कोई योजना बना रहा If था। there is someone who does not want to see your progress, it's the devil. और ऐसा व्यक्ति जो आपकी बढ़ोतरी को, आपकी प्रगति को नहीं देख सकता है, वो शैतान It's है। not your neighbor. ये आपके पड़ोसी नहीं है, It's not your colleague in office. आपकी सहकर्मी जो काम करने की जगह में, वो नहीं है, It's not anyone else. ये और कोई नहीं है। It's the devil who stands against God. और ये शैतान है जो परमेश्वर के खिलाफ खड़ा रहता When the है। devil sees God lifting up simple, ordinary people, he starts devising schemes against those people. और जब शैतान देखता है कि परमेश्वर अपने लोगों को ऊपर उठाता है, उनके खिलाफ स्कीमें, जाल बनाता है, And योजनाएं so what बनाता happens है। here?
और वह इसी तरह यहाँ पर होता है। You know that story. I'm not going to explain that story. आपको ये कहानी पता है, मैं इसको ज्यादा इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। Joseph can easily fall into sin. और यूसुफ यहाँ पर आसानी से पाप में गिर The सकता sin है of adultery. और एक एडल्ट बेविचार की पाप में वो गिर He सकता can है। fall into that sin because there's an easy opportunity there. और ये इस प्रकार की व्यभिचार की पाप में वो फंस सकता है क्योंकि उसमें एक आसान सा अवसर मिला था। But look at what Joseph said. Look at what Joseph said. और देखिए यहाँ पर यूसुफ क्या कहता है। Verse number 9, part 2. नौवां वचन उसके दूसरे हिस्सा में, How then could I do such a wicked thing and sin against God? मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं? He's not saying, how can I sin against my master? ये नहीं कह रहा कि मैं मेरे मालिक के खिलाफ क्यों पाप करूं। He's not saying, how can I sin against the officers who are appointed over me? और ये ऐसा नहीं कह रहा कि जो अधिकारी हैं मेरे लिए चुने गए उनके खिलाफ मैं पाप क्यों करूं। But he's saying, how can I sin against God? लेकिन वो कह रहा है कि परमेश्वर के खिलाफ मैं अपराध क्यों करूं। So Joseph knows that God is with him. और यूसुफ को पता है कि परमेश्वर उसके साथ है। Praise God. परमेश्वर की महिमा हो। God is not with us only on Sundays. He's with us on every day. और सिर्फ रविवार परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, हर एक दिन हमारे साथ रहता Every है। moment he is with us. हर एक क्षण वो हमारे साथ रहता He है। walks with us. वो हमारे साथ चलता His है। presence is with us. उसकी उपस्थितियां हमारे साथ चलती When है। we sleep, he is with us. जब हम सोते हैं वो हमारे साथ है। Every minute the Lord watches over us. और हर एक समय वो हमारे ऊपर ध्यान रखता है। Joseph knew that God was with him. और यूसुफ को पता था कि परमेश्वर उसके साथ है। And when he replies, he says, it's not against your master that I am sinning, but primarily it is against God who sent me here, against whom I am going to sin. I shall never do such a thing. और इस प्रकार से वो प्रति उत्तर देता है कि ये कोई मालिक, मेरा जो मालिक और अधिकारी है उसके खिलाफ नहीं, मैं परमेश्वर के खिलाफ ये पाप नहीं करूंगा। So what do you expect from God when you stay faithful to God? जब आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य कहते हैं, उसके लेकर आप किस चीज को अपेक्षा करते हैं? A reward. एक नतीजा। When you are faithful, जब आप एक विश्वास योग्य रहते when we हैं are committed, और आप प्रतिबद्धित रहते हैं, when we are obedient to God's word, what do we expect? और जब आप परमेश्वर के वचन के लेकर आप आज्ञाकारी है और किस चीज की आप अपेक्षा रखते We हैं? expect a reward. आप एक फल को आप अपेक्षा रखते We हैं, expect a promotion. आप एक बढ़ोतरी को लेकर अपेक्षा रखते हैं। What did Joseph get? और यहाँ पर यूसुफ को क्या मिला? Prison. जेल, बंदी गृह। Is there not enough reason for Joseph to grumble? क्या ये कहाँ ये काफी नहीं थी उसके लिए कुड़कुड़ाने के लिए? Can't Joseph become bitter and say, I stood faithful to God, I did not commit adultery, and this is the result that I get? और क्या यूसुफ इस प्रकार से कुड़कुड़ा नहीं सकता था कि मैं परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा और मुझे ये मिला? We know the end of the story. हमें पता है इस कहानी के अंत क्या है। Joseph did not know the end of the story. लेकिन यूसुफ को नहीं पता कि उसकी कहानी का अंत क्या है। And at the end of the story, Joseph says, it was God who brought me here. और यूसुफ कहता है कि अंत में ये परमेश्वर है जिसने मुझे यहाँ लाया है। He understood that God had brought him to Egypt. और ये वो समझता है कि परमेश्वर ने उसको मिस्र देश में लाया है। I assume that Joseph must be thanking God or praising God for whatever he was going through in his life. और मुझे लगता है कि यूसुफ परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा होगा कि जो भी उसके जीवन में उसके साथ हुई। Praise God. परमेश्वर की महिमा हो। We were talking on Joseph being fruitful, हम इस बारे में बात कर रहे हैं, यूसुफ एक फलवंत बना। and when we are reading his story, we cannot see any fruitfulness there. जब हम उसकी जीवन की कहानी पढ़ रहे हैं उसमें हम कोई फलवंत होने की बात But नहीं when देख we रहे हैं। understand the plan of God, God is moving him towards that level of fruitfulness. और जब हम इस परमेश्वर की योजना को हम देखेंगे समझेंगे, परमेश्वर उसको फलवंत होने की जगह में उसको ले चलता है। 39:21. 39 अध्याय उसके 21 वचन। In the prison, the Lord was with Joseph. और बंदी गृह में परमेश्वर यूसुफ के साथ था। Just imagine God moving along with Joseph. आप ये कल्पना कीजिए, परमेश्वर यूसुफ के साथ चल रहा है। God is moving
with us to all those difficult circumstances that we are facing. और हमारे जीवन के हर एक कठिनाई में, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ चल रहा है। We are not alone. हम अकेले नहीं है, We are not lonely. हम अकेले नहीं है। Though you may not hear anyone speaking, but still God is there. हालांकि हम किसी को बात करते हुए नहीं सुनेंगे, लेकिन परमेश्वर वहां पर है। Was there any reason for the Lord to go into prison? क्या यूसुफ को वहां उस बंदी For the Lord. क्या परमेश्वर यीशु मसीह को वहां पर बंदी गृह के अंदर जाने की कोई कारण थी? Yes, there was a reason. हाँ, उसमें कारण थी। There is a faithful man put in the jail. क्योंकि वहां पर एक विश्वास योग्य व्यक्ति को बंदी गृह के अंदर A डाला गया। committed person in the jail. एक प्रतिबद्ध व्यक्ति को जेल के अंदर डाला गया। Children of God, let me tell you, when we go through difficult times in life, God is right there. और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप जीवन की कठिन स्थिति से में जाते हैं, परमेश्वर आपके साथ वहां पर है। Even there we can become fruitful. और उस जगह में भी हम फलवंत हो सकते हैं। I'm fast forwarding the story now. हम इस कहानी को और आगे जल्दी ले जाएंगे। In the prison, Joseph is now sitting with two other persons. और बंदी गृह में यूसुफ दो और व्यक्ति के साथ बैठ रहा है। The chief cupbearer and the chief baker. Cupbearer, पियाऊ एक पियाऊ है और खिलाने वाला. और एक खिलाने वाला। They both are in the prison. They both are in the prison. और वो दोनों ही बंदी गृह के अंदर है। For a crime they committed. क्योंकि जो अपराध उन्होंने किया था। And Joseph is with them. और यूसुफ उनके साथ थे। And they saw dreams. और उन्होंने एक स्वप्न को देखते हैं। And who explained the dreams to them? और उनको कौन उस स्वप्न को बयां करता है? Joseph. यूसुफ। Do you remember the two dreams that Joseph saw when he was 17? आपको याद है जब वो 17 साल का था, जो दो सपने उसने देखे थे? Did Joseph understand what the dream meant? और उस सपना का अर्थ क्या था, उसने क्या समझा? But he's explaining the dreams of other people. लेकिन वो दूसरे लोगों की सपने को अर्थ बता रहा है। So even when he cannot understand his own situation, he's understanding the situation of other people. हालांकि वो अपनी खुद की परिस्थिति को नहीं समझ रहा है, लेकिन दूसरे की परिस्थिति को वो दूसरों को बता रहा है। That's how God works through us. और इस प्रकार परमेश्वर हमारे साथ काम करता है। Even when we go through difficult times, we can bless others. हालांकि हम अपने जीवन में कठिन परिस्थिति से जा रहे होंगे, लेकिन उसी टाइम हम दूसरे को आशीष कर सकते हैं। Maybe things are not moving for us. शायद हो सकता है हमारे लिए चीजें आगे नहीं बढ़ रही हो, But maybe you are praying for others. शायद आप दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे And their life is moving ahead. और उनके जीवन आगे बढ़ रहे हो। You are praying for their promotion. आप उनके बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कर रहे You होंगे are praying that God you lift them and bless them. और आप प्रार्थना कर रहे होंगे परमेश्वर उनको उठा और आशीष दे, And they are getting blessed. और वो आशीषित हो रहे हैं। And you are lying in the prison. और आप एक बंदी गृह में बैठे हैं। Just imagine that story. आप इस कहानी को कल्पना कीजिए। Yet Joseph is fruitful. और फिर भी यूसुफ फलवंत रहा। Praise God. परमेश्वर की Hallelujah. महिमा हो। हालेलुया। आमीन। Joseph is a fruitful vine. और यूसुफ एक फलवंत लता है। And then who saw dreams again? और फिर एक बार किसने सपना को देखा? The supreme ruler of the land, Pharaoh. He और- saw a dream. और उस जगह की जो सुप्रीम लीडर था फारो, Two dreams. He saw two dreams. उसने दो सपना को देखा None could explain the dream. और कोई भी उस सपना को बयां नहीं कर सकता That's था। when his friend said, "Oh, there's a man who can interpret dreams lying in prison." और तब जाकर एक व्यक्ति ने कहा कि एक बंदी गृह में एक व्यक्ति है जो सपना को अर्थ बता सकता है। Joseph is brought out. और यूसुफ को बाहर लाया गया And Joseph interprets the dream of Pharaoh. और यूसुफ फारो की जो सपना है उसकी अर्थ खोलता है। Still, Joseph did not understand his own dream. और उस समय भी अपनी सपने को वो नहीं समझ पा रहा था। This is how the Lord leads us. और इस प्रकार परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता This is है। how the Lord may be using you right now where you are placed. शायद हो सकता है आप अभी जिस जगह पर है उस जगह पर आपको इस You are प्रकार not से seeing an इस्तेमाल करना answer हो। for your own prayers, but you are seeing answers for others for whom you are praying. और हो सकता है आप अपने प्रार्थना के उत्तर नहीं मिल रहा होगा, लेकिन जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए वो उत्तर मिल रहा होगा। And there are so many things I have highlighted, but I cannot say all those things in this limited time. But you know the story. Joseph is made the prime person in that land. और यहाँ पर बहुत सारे बातें मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन समय कम है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ वहाँ पर एक मुख्य व्यक्ति रहता है। 42:6. 42 उसके 6 वचन। From the slave
to the attendant to the governor. और एक दास से एक अटेंडेंट और उसके साथ एक गवर्नर बनाया गया। He's a governor of the land. उस जगह की वो एक गवर्नर था He has all the control over the grain of that land. और उस जगह की जितने भी अनाज थी उसकी एक Control, नियंत्रण. नियंत्रण करने In वाला fact, बना। even when famine came, there is abundance in the land because Joseph did the planning. और जिस समय वहां पर अकाल आई और उस समय यूसुफ के पास बहुत आयात में उसके पास अनाज थी Because Joseph did the planning. क्योंकि यूसुफ ने वहां पर योजनाएं बनाई थी। God gave Joseph the wisdom to plan for Egypt. और परमेश्वर ने यूसुफ को इस प्रकार से योजनाएं दी मिस्र देश के लिए योजना करने के लिए। Now let me ask you this question. मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, Was there any reason that God wanted that God wanted to bless Egypt with abundance? Was there any reason? क्या कोई कारण हो सकती है जिसके लिए परमेश्वर मिस्र देश को आशीष करना चाहता Did हो? the Egyptians do any good thing that God had mercy on them? क्या मिस्री लोग ने कोई ऐसी अच्छी बात की थी कि परमेश्वर उनको आशीष दे? If anyone deserved mercy, it was that family who were living in Canaan. और अगर कोई इस प्रकार की करुणा के लिए योग्य है तो वो है जो परिवार कनान में है। Who are living in Canaan? कौन रह रहा है कनान में? Jacob and his family. याकूब और उसके परिवार। God should have revealed to them that a famine is coming, so store up some grains for yourself. और परमेश्वर को ये बात उनके सामने प्रकट करनी चाहिए थी कि अकाल आ रहा है, इस कारण आप अनाज को इकट्ठा Because they करें। are the grandchildren of Abraham. क्योंकि वो अब्राहम के पोते थे। But where was abundance? लेकिन आप देखिए कहां पर है बहुतायत? In Egypt. मिस्र देश में। Why is there abundance in Egypt? और मिस्र देश में क्यों है इस प्रकार की? Because of one person. क्योंकि एक व्यक्ति के कारण। Who is that person? और वो व्यक्ति कौन है? Joseph. यूसुफ। Because of you, one person, your family can be blessed. क्योंकि आपके एक व्यक्ति के कारण आपके परिवार आशीष हो सकता है। Your community can be blessed. आपकी समुदाय एक आशीष Because हो of सकता you, है। one person praying, your whole generation or coming generations can be blessed. आप एक व्यक्ति के कारण पूरी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी आशीषित हो सकती है। Because of one Joseph, there was abundance in Egypt. क्योंकि एक यूसुफ के कारण मिस्र देश में बहुतायत आई। There was so much grain in Egypt that people from Canaan were coming to buy grains in Egypt. और वहां पर इतना सारा अनाज था कि कनान से लोग आकर यूसुफ से मिस्र देश से वो खरीद रहे थे। So praise God for the tough times that you are going through. और परमेश्वर की महिमा हो जिस मुश्किल घड़ी से आप जा रहे हैं। Because God is going to make you a channel of blessing to many, a channel of blessing to many who are living in the dark. और परमेश्वर आपको एक आशीष का माध्यम बना रहा है और जो लोग उनके लिए जो अंधेरे में रह रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। People in the dark don't know Jesus. अंधेरे में जो लोग हैं यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। They don't know where there is abundant grace. और उनको नहीं पता है कि बहुतायत अनुग्रह कहाँ पर है। They don't know where there is abundant forgiveness. उनको नहीं पता है कि बहुतायत क्षमा कहाँ पर है। They don't know the mystery of the word of God. और परमेश्वर की वचन को वेद को नहीं जानते They हैं। don't know about salvation. उनको मुक्ति के बारे में नहीं पता है। They don't know about the cross. उनको क्रूस के बारे में नहीं They पता है। don't know about the blood of Jesus. और यीशु मसीह की लहू के बारे में उनको But नहीं पता all है। that is in our mind. और वो सारी चीजें हमारे दिमाग में हैं। Those treasures are in our mind. वो सारी चीजें हमारे दिमाग में है। There is so much of abundance in us. और हमारे बीच में ही बहुत सारे बहुतायत चीजें हैं। Praise God. परमेश्वर की महिमा हो। We know our identity हमें पता है हमारी पहचान क्या है, so that we can bless others. ताकि हम दूसरे को आशीष कर We सकें can tell them the truth of their identity. और हम उनकी पहचान की सच्चाई के बारे में बता We can सकते हैं। tell them that they are living in the dark times. और हम उनको बता सकते हैं कि वो एक अंधेरे की समय में We रह can रहे tell हैं them about Jesus Christ. और उनको हम यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं। That's why the Lord is taking us through tough times. इस कारण परमेश्वर हमें मुश्किल घड़ी से ले रहा है। We know the end of the story. हमें इस कहानी के अंत पता है। Joseph's brothers came to him. और यूसुफ की भाइयों वहां पर आते हैं Joseph did not react और in a wrong way, यूसुफ उनको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। but he forgave his brothers. वो अपने भाइयों को माफ करता And he है। told his brothers वो अपने भाइयों को बोलता है that because I came here because the Lord sent me here. और क्यों मैं यहाँ इसीलिए आया क्योंकि परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है। The Lord sent me ahead of you.
और परमेश्वर ने मुझे आपसे पहले यहाँ भेजा है। The response of a mature believer. एक परिपक्व विश्वासी मसीह की प्रतिक्रिया ये है। The whole world is blaming each other. पूरी दुनिया एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, But we should respond like mature believers, mature Christians. लेकिन हमें एक परिपक्व मसीह की तरह हमें प्रतिक्रिया करना है और व्यवहार करना है। Hallelujah. हालेलुया। I want to connect this verse to one verse and then end this message. इस वचन को हम एक और वचन से जुड़ेंगे और इसको हम खत्म करेंगे। John chapter 15. यूहन्ना उसके 15 अध्याय। Jesus is calling his disciples यीशु मसीह अपने चेले लोग को बुला रहे हैं and sharing some of his last messages or last words. वो अब बुलाकर अपनी अंतिम वचन को उनके साथ साझा He's करते हैं। spending more time with his disciples because he's nearing crucifixion. वो अपने चेले लोग के साथ बहुत समय बिताते हैं क्योंकि वो क्रूसित होने जा रहे हैं। John chapter 15, यूहन्ना 15 अध्याय verse number 16. उसके 16 आयत। What is written there? ये क्या लिख रहा है? You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit, fruit that will last. 16 वचन, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहरा है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वो तुम्हें दे। Is this a suggestion that Jesus gave? क्या ये सुझाव है जो यीशु मसीह दे रहे हैं? Is this an opinion that Jesus gave? क्या ये कोई विचार है जो परमेश्वर यीशु मसीह दे रहा है? It's an imperative ये एक commandment. ये एक कमांडमेंट है। Disciples were told, you were chosen so that you can go and bear fruit. पहले लोग को बताया गया कि आप चुने हुए हैं ताकि आप जाकर फल को फलाएं। What kind of fruit? और किस प्रकार की फल? Fruit that will last. ऐसी फल जो लंबे समय तक रहेगी। Mango season is going on. और आम की मौसम चल रही है। We all love mangoes. हम सब आम को पसंद करते हैं। A few days back I visited a family. और कुछ समय पहले मैं एक परिवार को मिलने जा रहा था। Maybe a month ago. हो सकता है एक महीने पहले की बात है। Not here, out of this country. इस जगह में नहीं लेकिन इस देश से बाहर। And they had kept deep frozen one mango last year. और उन्होंने पिछले साल एक मैंगो को डीप फ्रोजन करके रखा था। And they told me, enjoy this mango. और उन्होंने बोला कि इस आम को आप खाइए। It was not like our it was like that ice cream freezer where you deep freeze things. और ये सामान्य फ्रीज की तरह नहीं था, वहाँ पर बहुत ही डीप फ्रीज में वो रखा गया था। It was not, the taste was not original, but it was close to original. और वो जो ओरिजिनल टेस्ट है उसके तरह नहीं था लेकिन उसके करीब करीब आ रहा था। Because it was 1 year old mango. क्योंकि ये 1 साल पुराना आम है। Which fruit lasts forever? और कौन सा फल है जो हमेशा के लिए रहता है? Jesus said, bring fruit that will last forever. यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा फल फलाओ जो हमेशा के लिए रहेगा। Which fruit will last forever? कौन सा फल है जो हमेशा के लिए रहेगा? Will grapes last forever? क्या अंगूर हमेशा के लिए रहता है? We all know no fruit will last forever. हमें पता है कि कोई भी फल नहीं है जो इस तरह से हमेशा के लिए ताजा रहता Then है। what is Jesus telling? लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहा है? What did Jesus tell the disciples? Bring fruit that will last forever. और यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा है कि ऐसे फल फलाओ जो अंत तक रहेगी। When I read, I understood this. और मैं इस बात को ऐसे समझा, It's not nothing else but souls. ये कोई नहीं है, Souls, आत्माएं, people. ओके ये है आत्मा के बारे में। Jesus was telling about redeeming people. यीशु मसीह लोगों को मुक्ति देने की बारे में बात कर रहा है। Jesus was telling about saving souls, saving people. यीशु मसीह लोगों को बचाने के बारे में बात कर रहे हैं, आत्माओं को बचाने के बारे में बात कर रहा है। What is Jesus meaning there? और यहाँ पर यीशु मसीह का मतलब क्या है? I'll explain it in a few minutes and then stop. और इसको मैं बताकर उसको खत्म करना चाहता हूँ। Just like I said, some of you may be born Christians, you may be born into Christian families. जैसे मैंने कहा, हो सकता है आप एक मसीह परिवार में जन्म लिए होंगे। But some of you must have accepted Jesus on the way, और on your हो journey. सकता है आप लोगों ने बीच जीवन के किसी समय में आकर आपने यीशु मसीह को जाना है। Someone came to you and spoke about Jesus. कोई व्यक्ति आकर आपको यीशु मसीह के बारे में बताया Someone होगा। shared about Jesus to you. किसी व्यक्ति ने आपको यीशु मसीह के बारे में बताया होगा। That person disappeared. वो व्यक्ति वहां से गायब हो गया। That person must not be in this earth.
और हो सकता है वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं हो, But praise God that he shared about Jesus to you. लेकिन परमेश्वर की महिमा हो जिस व्यक्ति ने आपको यीशु मसीह के बारे में Today बताया, you and your children are worshiping the living God. और इस कारण आप और आपके बच्चे परमेश्वर की महिमा कर रहे So हैं। people will share and go, लोग आएंगे, साझा करेंगे और चले जाएंगे। but when we accept Jesus, जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, we get eternal life. हम एक अनंत जीवन को प्राप्त We करते will हैं। not perish in hell, हम नरक में खराब नहीं होते हैं, but we become inheritors of the eternal life, inheritors of heaven. और हम स्वर्ग की और वारिश। अनंत जीवन की वंशम होंगे। Hallelujah. आमीन। So what is the fruit that will last? और कौन सा फल है जो अंत तक रहता है? People. लोग। Let us reflect Jesus through our lives. चलिए हम अपनी जीवन के द्वारा यीशु मसीह को प्रतिबिंबित करते हैं। Joseph is a fruitful vine. और यूसुफ एक फलवंत फलवंत दाख मधु की लता है। What kind of vine? और किस प्रकार की लता A दाख मधु है? vine near a spring. और जो Spring, सोते के साथ. सोते के साथ है। A vine that is connected to the source. ऐसा वाइन जो अपने स्रोत के साथ जुड़ा हुआ है। A person who was connected to God all the time. ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ हमेशा जुड़ा रहा हो। At the same time, it is written, a vine that climbed over a wall. और उसी समय ये लिखा है जो दाख मधु जो एक दीवार के ऊपर चढ़ता हो। A few months back, while I was traveling from a village, और कुछ महीने पहले मैं एक गांव से जा रहा था, I saw many grapes hanging. और मैंने देखा बहुत सारे अंगूर वहां पर लटके हुए हैं। And I saw the farmers, the people working there. वहां पर लोगों को, किसानों को मैंने काम करते हुए देखा। They had put stakes. वहां पर लकड़ियां रखी गई थी। And the vines were hanging on the stakes. और The वहां grapes पर were hanging on the stakes. और वहां पर जो अंगूर हैं वहां पर लकड़ी के ऊपर लटक रहे थे। Have you seen any vine over a wall? क्या आपने किसी अंगूर को एक दीवार के ऊपर देखा है? No gardener will raise a wall and take a vine on that. और कोई भी माली एक दीवार को खड़ी कर कर उसमें वाइन लेकर रखता हो। They will always raise stakes for vines. वो हमेशा उस दाख मधु के लिए लकड़ियां खड़ी कर। But about Joseph it is written. यहाँ पर यूसुफ जो कह रहा है, About Joseph it is written, he climbed over a wall. और यूसुफ के बारे में लिखा है कि वो उस दीवार के ऊपर चढ़ता है। What does that mean? और इसका मतलब क्या है? Use your oppositions as your opportunities. आपके जो विरोध करने वाले हैं ये आपकी अवसर हैं। Joseph used his opposition, his persecution, his troubles, his hindrances as a wall to climb it. यूसुफ अपने विरोध करने वाले, उसको सताने वाले, उसके परिस्थिति मुश्किल घड़ी को वो इस्तेमाल कर रहा है उसके ऊपर चढ़ने के लिए। How can we become fruitful? और हम किस प्रकार से फलवान When हो we सकते हैं? use our circumstances to climb. और जब हम अपनी हालत को उसके ऊपर चढ़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। Let us not compare our life with others, और हम अपने जीवन को दूसरे से तुलना ना करें, but let us thank God for our lives और अब हमारे जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें, and let us become fruitful. और हम इसलिए चलिए हम फलवंत बने। Shall we pray? कि हम प्रार्थना करते हैं। Father, we are so thankful that you have chosen us. परमेश्वर हम धन्य हैं आपके प्रति कि आपने हमें चुनाव किया, But you have chosen us with a purpose. और आपने हमें एक उद्देश्य के लिए चुना है। Help us to remain faithful to the purpose for which you have called us. और जिस उद्देश्य के लिए आपने हमें बुलाया है उसके लेकर हम विश्वास योग्य रहें। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. 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 Thank you.